Hello, everyone. Welcome to ELI, the only podcast in India where we bring a new founder on every episode to talk about their journey and their story of building a company. And today we have with us Navin Tiwari, who is the co founder of Scrabble, Jigsaw, and many other ventures. And he primarily works in the domain of executive search and recruitment for other large companies. Hi, Navin. Welcome to ELI. Thanks a lot, Priya. It is a pleasure to be on your podcast. Thanks a lot for inviting me. Our pleasure as well. Would like to start with your introduction. Help us understand a bit about you, a little bit about your background, about your experience. Where did you study? Where did you grow up? And how did Sure. you eventually land up in the path of entrepreneurship? Okay. So, so I'll start from the beginning. I belong. So my grandparents are from UP. They are from a small place named Balia, which is next to Banaras. But Mhm. I was never born and raised there. They migrated to Chhattisgarh. उस समय it used to be known as Madhya Pradesh. So there was a place named Bilaspur, which is now part of Chhattisgarh. So Okay. there they had migrated. My grandfather was in army, Mhm. and that's why I was born and raised in now Chhattisgarh, Bilaspur. I did my Mhm. schooling there till class 12th. I was, there at Chhattisgarh itself. And then I moved to Pune for my graduation and MBA. Graduation was BCom, MBA was, with a college named ISBM, International School of Business and Media. Then my campus placement was through in Kotak. So I started out as a private banker slash wealth manager with Kotak. So in the first half of my career, 8 years I was a private banker. I worked Mhm. with banks like Kotak, Barclays, and UBS over a period of 8 years. And then I Mhm. moved into the recruitment side of the business. So I started my recruitment career with Michael Page, and then I worked with Native. So roughly 7 years I had spent my time doing recruitments as an employee. And then just over 4 years back, I moved out to set up my own company named Scrabble. So we are three co-founders, me, Swati, as well as Lakshmi. Me and Swati are also happen to be spouse. So I've started this company along with my wife and a colleague of mine, ex-colleague of mine. And Mhm. there were four founding members. So seven of us started Scrabble. And Mhm. Scrabble basically focused on hiring at management and leadership level, which is anything Mhm. which has a compensation levels of 30 lakh and upwards is what we focus towards. And Mhm. so Scrabble has been in existence for more than 4 years now. 2 years back, just over 2 years back, we set up Jigsaw because there was a lot Mhm. of requirement coming from our clients that tum senior level hiring karte ho, why don't you do junior level also for us? That is when we set up Jigsaw as well. Focused on roles which is 30 lakhs and below. Mhm. So that ways we are able to cover the whole spectrum of seniority levels. And then just like you, we started a podcast channel of our own, Mhm. which was roughly a year and a half back. What we also realized, as you mentioned, so we work with quite a few founders who are at early and mid stage levels. Mhm. We when we used to go out there and listen to their stories in terms of how they have set up their companies, how they have built their businesses, it was quite inspiring, and we got to learn a lot from them. Mhm. So we thought that Mhm. might as well take these stories to our audience. Okay. So there are a lot of candidates right from at various seniority levels, right from a fresher to a CXO, who are Mhm. stuck at some stage of their lives in some way. So we said that might as well take these stories and then let them also learn a lot of things or draw inspiration from these stories, which can Mhm. help them in with their careers in some form or the other. And that is Right. when we also started the Game Room, which is our podcast. We have also we have not been as big as you guys, but we have launched close to 100 episodes there as well. We also come out with one episode every week. Got it. Yeah, Uh, let's spend some time in understanding Scrabble and the whole business model of executive search. yeah. Can you take us to the early days before even starting this venture?
What Hmm. was the thought process in your mind? You were working on executive search already with Hmm. Michael Page and other companies. Yeah. What were the gaps that you observed, and why did you start out on your own? What made you to start? Usually, there is a trigger. Yeah. So, started out, see, honestly, when I was moving out of Native, the only thing which I had in my mind is just that I will take up a job, right? I mean, there was a notice period which I had to serve. And I thought to myself that, I mean, this is a talent deprived industry. So Mm-hmm. I will take up a job and, I mean, and do a job just like anybody else. Uh, Mm-hmm. what my wife so the real reason behind starting this business is honestly my wife, because she's a Mm-hmm. Marwadi and coming from Marwadi blood, she said that why don't we do something of our own. Yeah. Honestly, I didn't have that confidence that I'll be able to do my own business, Mm-hmm. because I came from a very conventional background. I mean, and uh, honestly, risk taking capacity wasn't that much, right? Mm-hmm. Because वो एक लत पड़ जाती है ना सैलरी की. सो Mm-hmm. लिटरली 16 years Yes. आई वाज अ जॉबी. तो फिर एवरी मंथ जो सैलरी आती है दैट वाज वेरी वेरी क्रिटिकल और क्रूशियल फॉर Correct. अस. तो Correct. सो वो सैलरी की लत थी, तो फिर सो आई डिडंट हैव द गट्स. स्वाति, who's my wife, she said that we'll figure it out, etc etc. तो so ऐसा कोई massive thought process नहीं था when we started. We Mm-hmm. didn't have answer to many of our questions, right? कि लोग कैसे आएंगे, etc etc. मतलब we went to few search firms, took our business plan कि आप हमारे पास invest कर दो and हम लोग साथ में build करते हैं, etc etc. तो उस समय भी हम लोग ने काफी उस समय तो हम लोगों को लगता था कि काफी हम लोगों ने सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर हम लोगों ने प्रोजेक्शन किया था कि हम लोग 50 लाख का रेवेन्यू कर लेंगे फर्स्ट ईयर अपना सर्च Mm-hmm. फर्म बना के. एंड Mm-hmm. देयर वर कपल ऑफ सर्च फर्म्स हु टोल्ड अस दैट यार मतलब ये बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव वो एस्टिमेशन है तुम्हारा, ये तुम नहीं कर पाओगे. एंड Okay. हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था कि पांचवें छठवें या सातवें साल तक हम लोग 6-7 करोड़ का के टर्नओवर पे पहुंच जाएंगे, which Mm-hmm. obviously we were shot down in a massive way, saying that Okay. वो मतलब ये हमसे नहीं हो पाएगा. Mm-hmm. तो सो हम लोग सोचे यार, एंड देन दे स्टार्टेड asking us for a lot of equity for very little money. अच्छा. So thankfully उस समय my brother-in-law, who's Swati's I mean real brother-in-law, sister's husband, Mm-hmm. he's in business as well. So he's one of the founders of Boxit, and he told us Okay. that matlab, he gave us a very good guidance. So he still remains one of our coaches, or for that matter, I mean mentors, so to say. And Mm-hmm. he gave us that confidence that तुम लोग कर सकते हो. I mean, अगर कोई financial crunch आया तो फिर we are always there as a family. So Mm-hmm. इतना डरो मत. So then that's when we started, and in the first year itself we did 4.2 crore ka revenue. Wow. That's And massive. second year we completed 10 crore, third year we did 15 crore, last year we completed 21 crore. So and we were told that वो 50 लाख जो हम लोग पहले साल का रेवेन्यू प्रोजेक्शन किए थे, that was a very very aggressive projection and we'll never be able to achieve that. So Hmm. so I not so much planning, we just focused on giving every day our best, to be honest. And Hmm. that's why whenever we see people, I mean, we always feel that as an entrepreneur, हम लोग जब भी podcast भी करते हैं दूसरे entrepreneurs के साथ, Mm-hmm. they are supremely focused on action orientation, right? Which is what Right. we focus on instead of overthinking everything, thinking, putting too much time on ideation, etc., Hmm. etc., which does not lead you anywhere. तो मतलब आज की Right. डेट में भी हम लोगों को कई लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि अरे यार ये जो स्विगी का बिजनेस मॉडल था वो तो मैंने 20 साल पहले सोचा था. तो Hmm. तुम्हारे सोच से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे आइडिया से कुछ नहीं Right. होगा जब तक तुम इम्प्लीमेंट या एक्शन नहीं कर पाओगे. Correct. तो आप बताइए कि इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ यू डिड 4.2 CR रेवेन्यू. वो कैसे किया? दिस इज क्वाइट अ सक्सेस फॉर ए न्यू बिजनेस विच जस्ट स्टार्टेड आउट. आपने कैसे क्लाइंट्स लाए?
because clients usually look for testimonials or success story. Since Yeah. when you are there in the market, आपका Hmm. credibility भी चाहिए. So Hmm. a lot of factors come in. How did you, first of all, get the clients, and how did you fulfill their request? So clients only pay in recruitment industry. I Yeah. think clients only pay after the hiring is done and the Correct. person stays for about a certain amount of time. Then only the consultant gets the money. So थोड़ा बताइए कैसे ये सब नेविगेट किया. तो जब नौकरी तो उसके पहले की थी ना 7 साल रिक्रूटमेंट में, तो सो ऐसे कई क्लाइंट्स थे जिनको हम लोगों ने काफी सर्विस किया था. एंड वो जो इनिशियल सेट ऑफ क्लाइंट्स हैं उन लोगों ने काफी कॉन्फिडेंस दिखाया. इनफैक्ट मेरे पास तो एक ऐसा क्लाइंट था जो मतलब ऐसे भी कुछ क्लाइंट्स थे जो जिन्होंने मेरा नाम मेरी पहली कंपनी के नाम से ही सेव किया था कि नवीन अच्छा. तिवारी माइकल पेज फॉर एग्जांपल. तो सो उनको तो सो उन्होंने उनसे जब मैंने पूछा तो फिर उन लोग बोलते थे यार मतलब हमारे लिए व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज दैट हु इज सर्विंग अस देन द ब्रांड इटसेल्फ. तो सो उस सो उनके लिए बस यही मैटर करता था कि अब नवीन तिवारी माइकल पेज से नेटिव मूव हो रहा है, नेटिव से कहीं और मूव हो रहा है, उनको उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था. तो सो थैंकफुली वो चीज काफी हमको कॉन्फिडेंस दी. और हम लोग ने वो अपने प्रीवियस अवतार्स में भी काफी बिजनेस डेवलपमेंट या सेल्स किया हुआ था. तो सो दैट ऑल्सो गिव अस द कॉन्फिडेंस कि कुछ ना कुछ तरीके से क्लाइंट्स तो आ ही जाएंगे. तो सो शुरुआत में कुछ क्लाइंट्स ने सपोर्ट दिखाया और कॉन्फिडेंस दिखाया कि चलो यार हमने तुम्हारे साथ पहले काम किया हुआ है, तो इस बार भी वो मतलब अगर वो हम तुम्हारे साथ भी काम कर सकते हैं. तो सो वैसे कुछ क्लाइंट्स थे. और फिर उसके बाद वो हम लोग जाके मार्केट में और क्लाइंट्स ढूंढना चालू किए. उनको बोले कि सो हम लोग के पास क्या था कि हम लोग के पास सैलरी देने का उस समय उतना पैसा नहीं रहता था. क्योंकि हम लोग टोटल 7 लोग निकले थे जो खुद का सेटअप किए थे. तो इंक्लूडिंग फाउंडर्स, 3 फाउंडर्स थे और 4 फाउंडिंग मेंबर्स थे. तो 7 पीपल हैड मूव्ड आउट. एंड वो 7 लोग के अलावा हमारे पास सैलरी देने के पैसे थे नहीं. तो सैलरी देने के पैसे नहीं थे मतलब हम लोग का सेविंग्स था, तो वो सेविंग से ही जा रहा था. तो सो हम लोग क्या किए कि हम लोग एक नया प्लान लॉन्च किए जहां पे हम लोगों ने बोला कि इफ देयर एनी returning mothers or for that matter people who have taken an employment break who wants to work get back into वो corporate world, we would love to work with them. तो हम लोग ने उनके साथ प्रॉफिट शेयरिंग पे काम चालू कर दिया कि हम क्लाइंट लेके आएंगे, तुम मैंडेट्स हमारे एग्जीक्यूट करना. तो ऐसे हम लोगों ने कम से कम 30-35 लोग को साइन अप कर लिया जो हम हमारे साथ सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग पे काम करते थे. तो so that gave us the capability to service the mandates which we were getting from the market without adding any fixed cost to us. तो so उस तरीके से हम लोगों ने धीरे धीरे थोड़ा सा इनोवेटिव सोच थिंकिंग जरूरी रहती है वहां उस समय. तो so इस तरीके से वो किया और फिर उसके बाद काफी रोल्स आने लगे थे हम लोग के पास. थैंकफुली हम लोग थोड़े लकी भी थे बिकॉज वो 2021 में जब हम लोग चालू किया था दैट वाज द पीक ऑफ सेकेंड वेव. और उस समय क्या था कि बहुत सारे स्टार्टअप्स बहुत हायरिंग कर रहे थे, तो उनसे काफी धंधा आया हम लोग को. ओके, ठीक है. तो कैन यू टेल अस अबाउट द होल लॉजिस्टिक ऑफ एग्जीक्यूटिव सर्च. लेट्स से a client comes with a requirement कि हमको let's say product manager चाहिए. तो and let's say the role is above 30 lakhs. या तो आप कैसे सर्च करना चालू करते हैं, कहाँ कहाँ पे सर्च करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, कितने लोगों को कांटेक्ट करते हैं सो दैट द डिजायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम आउट ऑफ, क्योंकि सब लोग क्राइटेरिया मैच नहीं करेंगे, सब लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे जो रोल है हाँ उसमें. सो उसका थोड़ा लॉजिस्टिक बताइए. सो ग्रेट क्वेश्चन प्रिया. सो सिंपल होता है सर्च का कि अगर फॉर अ लेमैन अगर उनको समझना है कि किस तरीके से सर्च बिजनेस चालू कर सकते हैं, तो कोई भी इंसान आज की डेट में फॉर देम टू स्टार्ट अ रिक्रूटमेंट बिजनेस दे ओनली रिक्वायर अ फोन एंड अ लैपटॉप. लैपटॉप टू सेंड ईमेल्स, आजकल तो वो फोन से भी होने लगा है. लेकिन लैपटॉप मे बी टू मेंटेन योर डेटाबेस और समथिंग लाइक दैट, एंड फोन टू मेक कॉल्स.
राइट। Mm-hmm. इसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है एक रिक्रूटमेंट बिजनेस चालू करने के लिए। उसके Mm-hmm. बाद बस आपको क्लाइंट्स के साथ नेटवर्क करना पड़ेगा, उनको ऑनबोर्ड करना पड़ेगा। तो सो रिक्रूटमेंट का बिजनेस काफी सिंपल है कि लेट्स से ईएलआई टुमारो इज लुकिंग फॉर अ वीडियो एडिटर फॉर एग्जांपल, Mm-hmm. जिसमें आप बोल रहे हो कि आपने बोला कि मैं इस वीडियो एडिटर को मान लो 30 लाख रुपए की सैलरी देने के लिए तैयार हूँ। तो Mm-hmm. मैं ईएलआई को ढूंढूंगा, मैं प्रिया से बात करूंगा, आस्क यू दैट आपको वीडियो एडिटर में क्या क्या चाहिए, एक्सपीरियंस रेंज, आपको इंडस्ट्री प्रेफरेंस है, किस टाइप के वीडियोस बनाने हैं, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी है क्या। फिर उसके बाद Mm-hmm. ईएलआई में क्यों ज्वाइन करे कोई, क्योंकि Mm-hmm. अगर आज की डेट में मैं ये प्रोपोजिशन लेके जा रहा हूँ, एक जॉब का प्रोपोजिशन लेके जा रहा हूँ किसी कैंडिडेट के पास, उसके पास भी मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। तो वाई शुड दे Mm-hmm. चूज वन कंपनी ओवर दी अदर, ये वाला अंडरस्टैंडिंग और पिच होना जरूरी है मेरे पास। तो जैसी Right. आपकी रिक्वायरमेंट्स मैं लेता हूँ, उसके बाद क्या हुआ कि देयर आर 2 3 सोर्सेज थ्रू व्हिच आई कैन गेट कैंडिडेट्स। One is Mm-hmm. through my personal network. Second is through my professional network, which I would have built over a period of time. Uh, Mm-hmm. Third is referral. I mean, so referral मतलब मान लीजिए मैं आपको जानता हूँ, आप किसी और को जानते हो, मैंने आपको बोला कि यार मेरे को वीडियो एडिटर चाहिए और आप किसी को रेफर कर दिए मुझे, ऐसे टाइप से भी Right. हमारे पास आते हैं। ये जो 2 3 मीडियम है, इसमें ये सबसे इफेक्टिव मीडियम है, ठीक है। Mm-hmm. और फिर उसके बाद जो सोशल वो होते हैं साइट्स, फॉर एग्जांपल Mm-hmm. नौकरी हो गया, लिंक्डइन हो गया, इन सब तरीकों से भी हम ढूंढते हैं लोगों को, Right. एंड ढूंढ के उनको रोल पिच करके, इंटरव्यू कोऑर्डिनेशन से लेकर सैलरी नेगोशिएशन से लेकर, जब इवेंचुअली वो इंसान आपका कंपनी ज्वाइन करता है, तो Mm-hmm. हमारा एक अग्रीमेंट बनता है कि एक एक्स परसेंटेज ऑफ द एनुअल सैलरी ऑफ द कैंडिडेट Mm-hmm. बिकम्स द फी ऑफ द रिक्रूटमेंट फॉर्म। तो Okay. सो जब वो कैंडिडेट ज्वाइन करता है, उसके तीसरे 30 यू विल पे मी Mm-hmm. दैट फीस। Mm-hmm. Got it. That's how the whole circle is completed. Understood. And what is that percentage? कितना परसेंटेज पे करते हैं? इट कैन रेंज है, मतलब वो आज की डेट में आपको मार्केट में 6% से लेकर 35% तक के लोग मिलेंगे, Wow. राइट। सो सम पीपल विल गिव यू 6% ऑल्सो ऑफ द एनुअल सैलरी एज द रेट, एंड सम पीपल विल से दैट आई विल चार्ज यू 35% ऑल्सो एज रेट। Now, Mm-hmm. depending on the seniority level, depending on the specialization of the recruitment firm, for example, for us, that range is for Scrabble anywhere between 12 to 20% of Mm-hmm. the annual salary of the candidate. And for Jigsaw, it can range from 10 to 12%. Got it. And Hmm. all right. Let's talk about Jigsaw now. How different is it from a Scrabble kind of business? Because logistics are a little different. The pay packages are different. So your हाँ, commission, the amount of effort goes into it may not be equal to the commission that you end up getting. So how different is it? so it is different also, but it is in many ways similar also. uh, Mhm. why different is because देखिए, अगर आपको स्क्रैबल जैसा बिजनेस रन करना है, तो फिर वहां पे there is a lot of effort which is required to get clients as well as Mhm. service as well as find people, right? Mhm. Because जितना सीनियर हो जाता है मैंडेट, उतना Mhm. ही अवेलेबिलिटी ऑफ टैलेंट बिकम्स लेसर। Right. आज की डेट में अगर मैं सीईओ मैंडेट रन कर रहा हूँ, तो मेरे Mhm. पास हजारों कैंडिडेट नहीं होंगे मार्केट में, राइट। Mhm. द लोअर यू गो as far as seniority level is concerned, the the choices become much larger. Now Mhm. many people will feel that yeah, the moment you have to choose from a bigger pool, your job will Mhm. become easier, right? Mhm. बट वैसा नहीं है, मतलब सो क्या होता है कि जैसा स्क्रैबल मैंने आपको बताया कि सीनियरिटी लेवल में क्लाइंट भी लाना मुश्किल होता है, कैंडिडेट भी लाना मुश्किल होता है। Mhm. जिग्सॉ में आपको क्लाइंट लाना मुश्किल उतना नहीं होगा, क्योंकि Mhm. इट इज अ
relatively lower stake game, Hmm. क्योंकि the seniority of roles is not very high, the rates are much lower compared to Mhm. Scrabble, but वो ये कि और ऐसा है कि यहाँ पे clients have got not too much to lose. Hmm. So what I mean by that is अगर मान लो किसी कोई client CEO गलत हायर हो गया ना, Hmm. तो फिर कंपनी में बहुत बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ सकता है, या CFO या Right. CHRO। Correct. लेकिन अगर एक सेल्स एग्जीक्यूटिव गलत हायर हुआ तो आप उसको थोड़ा आसानी से रिप्लेस कर सकते हो। Hmm. तो द स्टेक्स आर रिलेटिवली लोअर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सेल्स एग्जीक्यूटिव का रोल लो इम्पैक्ट रोल है, वो भी हाई इम्पैक्ट रोल है, लेकिन मार्केट में जनरली अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, एंड Mhm. मतलब इम्पैक्ट इज कंपैरेटिवली लोअर देन द सीनियर फोक्स, राइट? तो Mhm. वहां पे असेसमेंट बिकम्स अ वेरी वेरी ट्रिकी थिंग, क्योंकि Mhm. मैं अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव ढूंढ रहा हूँ तो फिर मतलब हजारों लोग हैं मार्केट में। अब उन 1000 लोगों में से मैं किस तरीके से वो सही इंसान को चुन के क्लाइंट को भेज रहा हूँ, that becomes a very difficult art, right? Because everybody will speak the same language, and that candidate pool will also be slightly less professional. मतलब कुछ Mhm. लोग आपका फोन उठाना बंद कर देंगे, कुछ लोग आपको ब्लॉक कर देंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि इंटरव्यू जाने वाले हैं, फिर इंटरव्यू में नहीं पहुंचेंगे, फोन ही नहीं उठाएंगे, Right. ऑफर बैकआउट्स Yeah. बहुत होंगे। वो लोग बोल देंगे अच्छा ठीक है मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसके ज्वाइनिंग से पहले मना कर देंगे। ये थोड़ा कम होता है सीनियर लेवल पे, लेकिन होता Mhm. है, बट कम होता है। बट जूनियर लेवल पे काफी होता है, तो आपके थोड़ा वो लेगवर्क बढ़ जाता है, Hmm. Got it. Can लेकिन you वहां पे tell me क्लाइंट what? लाना उतना डिफिकल्ट नहीं है। Got it. Can you tell me one thing? So there is a ratio between how many candidates you shortlisted versus how many got selected. So for every, let's say, let's talk about the executive category. Let's say you refer 5 candidates, one gets shortlisted. So what is that ratio? Kitna, how many candidates you end up referring to the company before one gets selected versus, and how does that differ in the junior category, 5 to 30 lakh category? So surprisingly, it's very different. I mean, it's counterintuitive to be honest, Priya. So, so जब सीनियर लेवल पे होता है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कितना क्लियर मैंडेट है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग अभी एक सीईओ रोल रन कर रहे हैं, Mm-hmm. उनको और ये अर्ली स्टेज कंपनी के साथ है। मतलब व्हेन आई से अर्ली स्टेज, मतलब वो कंपनी उतनी बड़ी नहीं है, 60-70 करोड़ की कंपनी होगी जिसके लिए अर्ली स्टेज सीईओ रन कर रहे हैं। अब Mm-hmm. उनका रिक्वायरमेंट तो ये है कि एक सीईओ आके टर्न अराउंड कर दे, Mm-hmm. लेकिन अभी तक तो उनको टैलेंट बहुत हाई लेवल चाहिए, Mm-hmm. लेकिन उनके पास बजट उतना नहीं है Okay. टू पे सैलरी। तो ऑब्वियसली जो भी आएगा उसको एक सैलरी कट पे आना पड़ेगा। Mm-hmm. फिर क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि आप वो रोल चालू करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप एक वीडियो एडिटर ढूंढ रहे हो, ठीक Mm-hmm. है? तो शुरुआत में जितनी ज्यादा आपकी क्लैरिटी होगी ना कि मेरे को किस टाइप का वीडियो एडिटर चाहिए, Mm-hmm. वो रोल उतना ही तेजी से क्लोज हो सकता है। जैसे हम लोग के साथ ऐसा भी हुआ है कि हम लोग ने 2 प्रोफाइल भेजे और रोल क्लोज हो गया स्क्रैबल में। Okay. Got it. कुछ ऐसा भी चला है कि 40 प्रोफाइल गए हैं बट अभी तक रोल क्लोज नहीं। Mm-hmm. सेम विद जिक्सॉ। Mm-hmm. तो सो होता क्या है कि कई बार क्लाइंट का भी रिक्वायरमेंट ना बेसिस द बिजनेस कंडीशन चेंज होता रहता है Mm-hmm. कि यार मतलब मैं शुरुआत में मेरी ये रिक्वायरमेंट थी, मैं कुछ लोगों से मिल के ना अब मेरा रिक्वायरमेंट थोड़ा इवॉल्व हो गया है, तो Mm-hmm. अब इस टाइप के लोगों को देखते हैं, फिर हम इस टाइप के लोगों को देखते हैं। तो वो देखते देखते ना आपका इवेंचुअली वो नंबर ऑफ पीपल यू हैव मेट स्टार्ट्स ग्रोइंग। बट यूजुअली मतलब अगर आप देख लो तो अगर आपने 7-8 लोगों से मिलने के बाद भी
अगर अपना रोल क्लोज नहीं किया है, Mm-hmm. मीन्स, सो आप मिलते कब हो? कि एक सर्च फॉर्म ने आपको प्रोफाइल्स दिखाए, ये देखिए ये Mm-hmm. 4 लोग अग्री किए हैं आपसे बात करना, और आप उस 4 में से बोलते हो कि इन 4 में से ये 2 से मिलवाओ मुझे। Mm-hmm. तो मतलब 8 लोगों से मिलने के लिए टेक्निकली आप 16 प्रोफाइल्स देख चुके हो। Right. तो 8 लोगों से, और वो 8 लोगों को आपने चुना है कि Mm-hmm. मैं इनसे मिलना चाहता हूं, मतलब आपको उनके प्रोफाइल में कुछ तो सही दिखा होगा। Mm-hmm. तो अगर 8 लोगों से मिलने के बावजूद भी आप रोल क्लोज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपका क्लैरिटी उतना ज्यादा नहीं है कि आपको इस इंसान से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। Got it. कुछ कंपनी से हम लोग के पास आके बोलते हैं कि तू इस बंदे को ले आओ, मैं इसको हायर कर लूंगा या लूं, Mm-hmm. which means Okay. that that's only one CV closure. Mm-hmm. Then it's only about conversion. Mm-hmm. अब क्या होता है कि अब एट जूनियर लेवल्स आई मीन आप उतने फंसी नहीं रहते हो। तो Mm-hmm. जूनियर लेवल में क्या हो गया कि अगर आपने 4-5 लोगों से मिल लिए ना, Mm-hmm. तो आप अपना मन बना लेते हो, चलो यार ठीक है इसको ऑफर दे देते हैं, Mm-hmm. क्योंकि यू हैव अगेन लेसर टू, मतलब जो स्टेक है वो थोड़ा लेसर है। Right. वो गलती आप एक बार कर भी दोगे तो फिर आप उसको करेक्ट जल्दी कर सकते हो, Mm. वो सीईओ या सीएक्सओ रोल पे नहीं कर सकते। Got it. Got it. I have a burning question in the recruitment industry right now. So अभी क्या हो रहा है ना, because of AI coming in, lot of companies are laying off people. All the हाँ, big companies, Amazon, Google, करेक्ट। Apple, Microsoft, and all, they have laid off people. They are not hiring anymore. There has been hiring freeze for a lot of tech हम्म, companies. I don't know if it is happening for other industries. हम्म, But these are the newses I come to hear on LinkedIn, and so the overall number of vacancies has reduced. Correct me if I'm wrong. How हम्म। is the industry changing, and what is your advice based on the trends that you have been observing? देखिए ये तो होगा ही, आई मीन, सो सो देखिए, कंपनीज आर बिकमिंग फार मोर एफिशिएंट व्हेन इट कम्स टू वर्कफोर्स, राइट? Mm-hmm. ऐसा नहीं है कि लोग रिप्लेस हो जाएंगे कंप्लीटली। व्हाट विल हैपन इज दिस, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग का बिजनेस ही अगर आप देख लेंगे, देयर आर सम असेसमेंट टूल्स, और फॉर दैट मैटर टूल्स व्हिच आर एबल टू गेज अ कैंडिडेट बेटर बाय डूइंग एआई इंटरव्यूज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो Mm-hmm. अगर मेरा एक बंदा 8 रोल रन करता था, तो अब वो शायद इंस्टेड ऑफ मी हायरिंग वन मोर पर्सन, आई माइट एक्सपेक्ट दिस पर्सन इटसेल्फ टू स्टार्ट मैनेजिंग 15 रोल्स, Mm-hmm. राइट? तो ये एफिशिएंसी आ जाएगी, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि एंड टू एंड पूरा आपको आपका काम ही छीन लिया जाएगा मार्केट से। लेकिन Okay. ये चीज है कि लो स्टेक जॉब्स, जो जूनियर लेवल पे क्या है कि जहां पे ह्यूमन डिसीजन मेकिंग इज नॉट मेकिंग टू मच ऑफ एन इम्पैक्ट। Mm-hmm. व्हाट आई मीन बाय दैट इज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुछ ऑटोमेशन एक्सरसाइज रन करनी है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में Mm-hmm. कोई अगर चपाती बना रहा है, मतलब या कुछ भी एक पर्टिकुलर एक लाइन ऑफ वर्कफ्लो को मैनेज कर रहा है, तो Mm-hmm. एट लोअर लेवल द जॉब्स विल गेट इम्पैक्टेड मोर। Got At it. senior levels, the jobs will still not be impacted. Mm-hmm. So it's very important and imperative, and it's very critical, AI रहता या नहीं रहता, आपको अपने आप को अपस्किल करना बहुत जरूरी है, ताकि आपका जो रेलेवेंस है आपके जॉब में, इसीलिए आप बड़ी कंपनीज को देख रहे हो ले ऑफ करते, क्योंकि बड़ी कंपनीज में क्या होता है कि they have compartmentalized every department, and there are people who are taking care of that specific function. Up, Mm-hmm. you will hardly hear a startup laying off employees because of AI adaptation.
Mm-hmm. बिकॉज वहां पे इतना मल्टीटास्किंग करते हैं लोग। Got it. तो जो बड़ी कंपनीज होती है जहाँ पे मतलब बहुत बड़े बड़े प्रोसेसेस को एकदम छोटी छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो जो यंगर और फॉर दैट जो जूनियर लेवल लेवल रोल्स हैं, दैट इज एट अ हायर रिस्क कंपेयर टू एनीथिंग एल्स। बट ऐसा Mm-hmm. नहीं कि एआई आके सबको ही स्वीप ऑफ कर देगी। Got it. And one more thing, I have also observed that there are some roles which are increasing, the demand in increasing. For example, AI related जो भी jobs है, या AI trainer, for example, AI या product manager, for example. So जो AI related jobs बढ़ रहे हैं, data analytics पे बढ़ रहा है. So you being a recruiter, you must be, doing some analysis on which are the mandates that are coming more and more, which are reducing. तो उसके basis पे can you give us some ज्ञान around which are the profiles which are having good demand now and in future it is growing? हम लोग तो अभी क्या है कि हम लोग इंडिया में हायरिंग पे फोकस करते हैं। हम्म। इंडिया में अभी तक वो जो एडेप्टेशन है वो अभी तक उतना ज्यादा नहीं आया जितना आप वो मोर डेवलप्ड कंट्रीज में देख रहे हैं। हम्म। लेकिन फिर भी वो फॉर एग्जांपल एआई एमएल इंजीनियर्स आर एक्सट्रीम, मतलब इस टाइप की जॉब सब ज्यादा आने लगे हैं। देन उसके हम्म। बाद जैसा आपने बोला कि वो जो प्रोडक्ट मैनेजर्स है, डेटा साइंटिस्ट रोल्स हैं, ये रोल्स अब ज्यादा इमर्ज हो रहे हैं। तो सो विद इन tech, or for that matter product as a function, we are seeing an emergence of more and more AI slash ML related jobs. Got it. And what are the skill sets, new skill sets that you have been seeing जो अभी पहले नहीं था, अभी मैंडेट में आ रहा है? सरप्राइजिंगली मतलब वो बियॉन्ड टेक अगर मैं बात करूं, सो टेक में तो वी हैव अ स्पेशलाइज्ड टीम व्हिच फोकसेस ऑन टेक। तो कौन से सॉफ्टवेयर्स या कौन सी लैंग्वेजेस आर मोर प्रिफर्ड, दे विल बी एबल टू थ्रो मोर लाइट टू इट। But Mm-hmm. but what we are seeing is that I mean increasingly is the need for graphic folks, the need for content creator, content team, uh, bringing specialized skill, or for that matter, because creativity is something which is again slightly more difficult to replicate through tech. So these are some of the roles which we have started seeing emerging a lot more. I mean, these are not new roles, Mm-hmm. but what clients have also started becoming very very particular or finicky is that किस टाइप का पोर्टफोलियो है इस इंसान का, एक डिजाइनर का, और फॉर दैट मैटर एक क्रिएटिव आर्टिस्ट का, या कंटेंट Mm-hmm. राइटर का, या कॉपी राइटर का। तो सो so especially I mean in both B2B as well as B2C world, these have become very very critical. Mm-hmm. Got it. मैं नए Uh, वालों की बात कर रहा हूँ, मतलब बियॉन्ड दिस ऑब्वियसली सेल्स मार्केटिंग और जो कॉर्पोरेट फंक्शन रोल्स हैं उसमें तो हायरिंग हो ही रही है। got it. Speaking of technology, I'm also curious to understand how you, as a recruitment firm, how do you leverage tech? Because I think a lot of innovations have happened in last 2 3 years alone. There are tools for shortlisting the CVs या quite fast. So आपका अगर mandate clear है तो you can easily scroll through 100 CVs and find out what is that two three most relevant CVs. That has become easy. You can also now conduct interviews through AI, like you rightly mentioned. There are tools which can conduct interview in instead of a real human being. हाँ And there are tools to save the profiles like the CRM sort of thing, so which we या call as ATS, at applicant tracking system. हम्म। So बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गए हैं and they connect with each other very well. तो हम्म। आपने क्या क्या टेक्नोलॉजी लेवरेज किया है, क्या क्या कर रहे हैं, एंड व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स? सो अभी हम लोग एक सीआरएम टूल यूज कर रहे हैं ऑलरेडी। आई मीन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में एटलीस्ट the adaptation of technology in recruitment industry has been extremely low, right? आज की डेट में अभी भी काफी सारी रिक्रूटमेंट फर्म्स आपको दिखेंगी जो अभी
ड्राइव पे या फिर उस एक्सेल शीट पे अपना बिजनेस चला रही है, राइट? सो Mm-hmm. so what has become extremely critical for us, so for us data is extremely critical, right? I mean जो हमने अभी तक काम किया हुआ है, हम Mm-hmm. जितना उसको स्टोर करके जितना उसको इंटेलिजेंट बनाते रहेंगे उतना ही मेरा काम आसान होता रहेगा आगे जाके, राइट? Mm-hmm. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको वीडियो एडिटर का एग्जांपल दिया। अगर मैंने साल के पिछले साल 250 से 300 वीडियो एडिटर रोल अगर रन किए हैं इन द कंज्यूमर टेक या D2C स्पेस, और अगर मैंने उसका डेटा स्टोर करके नहीं रखा है तो इस साल वापस मेरा काम उतना ही रहेगा, राइट, ढूंढने का। Mm-hmm. तो इट्स Right. वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं किस तरीके से उस डेटा को स्टोर कर रहा हूँ और किस तरीके से उस डेटा को रिट्रीव कर रहा हूँ, ये भी Mm-hmm. काफी क्रिटिकल रहता है। ये जितने वर्क फ्लो होते हैं कि मैं कितने कितने क्लाइंट से मिला हूँ, क्या क्या बातें की है उन क्लाइंट से, फिर उसके बाद उन क्लाइंट से क्या क्या मैंडेट आया है, फिर उसके बाद वो मैंडेट्स में कैसे कैसे टाइप के प्रोफाइल्स भेजे मैंने। देयर इज सो मच इंटेलिजेंस which can come out of the historical work which I have done, right? Mm-hmm. Which can make me go and acquire more clients, or for that matter close roles faster. तो Mm-hmm. इट्स वेरी इम्पेरेटिव कि एक एंड टू एंड, मतलब आज की डेट में भी हम लोग काफी सारे प्लेटफॉर्म्स को इवेलुएट करते हैं, HR टेक प्लेटफॉर्म्स को स्पेशली, बट अभी तक हमने एक भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देखा है जो एंड टू एंड पूरा सोल्यूशन दे। सो व्हेन Mm-hmm. आई से एंड टू एंड पूरा सोल्यूशन दे, मतलब मेरा जो लाइफ साइकिल है एज अ रिक्रूटमेंट फर्म इज टू गो आउट, hunt clients, Mm-hmm. get them onboarded, Mm-hmm. run roles with them. Mm-hmm. Whenever my people are going and meeting them, then do those capture those conversation, देन उसके Mm-hmm. बाद जो इंटरव्यूज हो रहे हैं उसको भी कैप्चर करे सिस्टम में, जो नेगोशिएशन हो रहे हैं उसको भी कैप्चर करे सिस्टम में, देन उसके बाद किस तरीके से मैं सोर्स करता हूँ कैंडिडेट्स वो भी कैप्चर करे। तो अभी Mm-hmm. आपको जो मार्केट है वो मार्केट में ये बोल देगा कि मैं आपके लिए ना एक सोर्सिंग टूल बना दूंगा, लेकिन Mm-hmm. आप कोई और टूल ढूंढो जो असेसमेंट करे आपका, और Mm-hmm. मैं हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। कोई बोलेगा कि मैं आपके लिए असेसमेंट बना दूंगा, आप सोर्सिंग कहीं और से कर लो। कोई Mm-hmm. बोलेगा कि मैं पार्सिंग कर दूंगा आपके लिए। कोई बोलेगा कि वो अच्छा ठीक है, मतलब वो मैं ना आपका ये पूरा डेटा एक जगह पे स्टोर करके रख दूंगा। कोई बोलेगा कि नहीं यार हम CRM नहीं कर सकते, अब तो CRM आप किसी और से ले लो। तो Mm-hmm. एक भी ऐसा, तो हम लोग अभी एक ऐसे टूल के लिए काम कर रहे हैं, मतलब वी आर पार्टनरिंग विद समबडी Mm-hmm. हु इज लुकिंग टू डेवलप दिस टूल फॉर अस। Okay. अगर वो टूल बना दिया गया ना, मतलब वो बेसिस, तो फिर मुझे लगता है ये एक इंटरनेशनली इट विल बिकम वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, जो Got आपका it. पूरा लाइफ साइकिल मैनेज कर रहा है, राइट Mm-hmm. फ्रॉम फिल्टरिंग द राइट profiles for you Mm-hmm. to assessing the candidates to making sure that आपका पूरा workflow is managed. Understood. So we are already working toward, मतलब we are already using a tool. That Mm-hmm. tool is like 4 out of 10, but we are Mm-hmm. working towards developing a tool which will become your 8 or 9 out of 10. Understood. Got it. Final question. So as an entrepreneur, tell us what have you learned about entrepreneurship, and what other entrepreneurs can take away from your journey and probably apply to their ventures or their life as well. So again, great question, Priya. So entrepreneurship, I believe, requires a lot of सो फर्स्टली मतलब हम लोग को ये मिसकंसेप्शन हटा देना चाहिए कि दीज गाइस आर सुपर ह्यूमंस। Hmm. एवरी एंटरप्रेन्योरशिप इज ह्यूमन हु विल मेक राइट डिसीजंस, रॉन्ग डिसीजंस, Mm-hmm. sometimes will succeed, most of the time will fail. So मतलब Mm-hmm. अब अगर आज की डेट में आप वो मतलब हम लोग का जो डे टू डे वो रहता है उसमें हम लोग Mm-hmm. शायद रोज, मतलब शायद क्या, रोज तो डेफिनेटली नहीं सक्सीड होते, और Mm-hmm. कम से कम 10-12 बार फेल होते हैं छोटी Mm-hmm. छोटी चीजों में। Mm-hmm. तो
so it's very important to understand कि मतलब एक entrepreneur के लिए ना failure should be, मतलब अगर आप failure से कुछ ज्यादा affected हो रहे हो Hmm. तो मतलब don't let it bog you down and then उसके बाद let it affect your discipline or motivation. तो Hmm. it is very important to stay disciplined, stay Mhm. motivated. So basically discipline का मतलब ही यही है कि आप you show up every day Hmm. irrespective of however you are feeling Got with it. the same level of passion, right? तो वो बहुत जरूरी है। दूसरा है कि मतलब ये तो आपकी लाइफ का हिस्सा ही रहेगा फेलियर्स, और फिर उसके बाद वो एक ऑप्टिमिज्म होना बहुत जरूरी है एक Hmm. एंटरप्रेन्योर के अंदर। अगर आप पेसिमिस्टिक हो तो फिर पता नहीं आप कितना दूर तक जा पाओगे एज एन एंटरप्रेन्योर। सो Hmm. यू हैव टू बी क्रेजीली ऑप्टिमिस्टिक, मतलब पीपल शुड स्टार्ट थिंकिंग दैट यू आर अ मैड पर्सन। Hmm. उस टाइप का ऑप्टिमिज्म रहना जरूरी है। एंड accept that you don't or can't know everything. Hmm. And yeah, these are the 3 4 things which I mean I might be missing some of them, but broadly जो top of the mind में जो मेरे आता है वो यही है। All right. Thanks again for joining us, Naveen. It was a pleasure to have you on that platform. And Likewise, we Priya. got to know about a lot of things in the recruitment industry, how recruitment happens, especially a lot of companies. What they do is they simply hire a recruitment consultant and give them a mandate. But what happens behind the scene? I think you gave us a glimpse of that, and thanks for that. Thank So you. on that note, we will close the session. Thanks again for joining us and kudos to the work that you are doing. Thank you. Likewise, Priya. And good luck to you guys as well at ULI. Thank you.